Sir coaching class, and I welcome to all of you on my new video series English for Learner with the Islamic greetings. Assalamu alaikum, and you are watching Ghazali Darshan Network. Friends, English is the third language for us. We learn English in schools, colleges, and different institutions as the third language. It is said that English is the window of the world. So if you want to look out the world, if you want to observe the world and want to something to do in the world, we must improve our English. For this, vocabulary is very crucial part. Friends, as you know, vocabulary plays very important role to improve our English. We have learned several lessons based upon vocabularies. We have seen, we have studied the parts of speech. You know, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection, and determiners. Yes, friend, determiner is also the part of speech, and articles are included in determiners. So friends, today we are going to learn one of an important topic, that is article. Firstly, I am going to tell you the meaning and the concept of article, and thereafter I will tell you the types of article and how to use it in different sentences, and what is the advantage of article in our state board examination as well as the competitive level examination. Article means in Urdu hurf tankeer. Article are the words that defines the noun. I am repeating. Article are the words that define the noun. There are two types of articles in English grammar. The first one is definite article, and the another one is indefinite article. And there are three articles in English: a, an, and the. These three articles are classified into definite article and indefinite article. Let's see the meaning of these articles and which are the definite and indefinite articles are. Article the has its special meaning. It uses before the special things and object. So it means a special, and it is included in definite article. Whereas articles a or an means one, ek. And these two articles are included in indefinite articles. We can also see the definite article is the, and a and these two articles are indefinite. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स में डिटरमाइनर एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, और आर्टिकल
ये डिटरमाइनर में शामिल किए जाते हैं। डिटरमाइनर्स बंच ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें से आर्टिकल एक ऐसा लेसन है जो डिटरमाइनर में शामिल किया गया है। और आर्टिकल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। और इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल कुल 3 है, ए, एन और द। और ये तीनों भी आर्टिकल डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के इन टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए। तो हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कहेंगे और किस आर्टिकल को हम डेफिनाइट आर्टिकल कहेंगे। आर्टिकल द, अगर हम इसको देखें, ये अपने आप में खास मीनिंग रखता है। खास नाउन्स से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आर्टिकल द को हम डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। जबकि आर्टिकल ए और एन, ये मीनिंग के एतबार से इन दोनों का भी मतलब वन होता है, यानी एक। और ये दोनों भी आर्टिकल्स इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में शामिल होते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल के मीनिंग हो गए हुर्फ तनकीर, और आर्टिकल्स का मतलब कि ऐसे इंग्लिश के जो वर्ड्स जो नाउन को डिफाइन कर दें उसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि आर्टिकल्स के इस्तेमालात क्या क्या है। मगर एक बात आप ज़हन-नशीन रखें, आर्टिकल का इस्तेमाल लफ्ज़ों के बजाय लफ्ज़ों की आवाज़ की बुनियाद पर होता है। So let's learn the uses of articles. Dear listener, as you know, there are 3 articles in English: article the, article a, and article n. You have already learned its detail. Now learn the uses of different articles. In this, the use of article we are going to learn. Let me explain where we can use the article the. Actually, article the is used different places before the different noun, but I am going to tell you some of them. Article the is used before the names of holy and religious books. यानी दोस्तों, आर्टिकल दो का इस्तेमाल दुनिया की मजहबी और मुक़द्दस किताबों के नामों से पहले किया जाता है, जैसे कि द होली कुरान, द बाइबल, द गीता, द महाभारत, द रामायण। ये सब मुक़द्दस और मजहबी किताबें हैं। इनके नामों से पहले आर्टिकल दो का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द सेकंड यूज ऑफ आर्टिकल इज हियर बिफोर आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। आर्टिकल द का इस्तेमाल ऑर्डिनल नंबर से पहले भी किया जाता है। आपको पता है नंबर्स अलग अलग तरह के होते हैं, उन्हीं में से ऑर्डिनल नंबर भी नंबर की एक टाइप है, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड, द 10th, द 100, द 1000, द लास्ट। इन सब लफ्ज़ों को हम, इन सब नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। द थर्ड यूज ऑफ द आर्टिकल इज द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्स। हमने इससे पहले एडजेक्टिव के 3 अलग अलग टाइप देखे: कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म। आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म के जितने भी लफ्ज होते हैं उनसे पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द बेस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, एक्सेट्रा। द फोर्थ यूज ऑफ द आर्टिकल द इज यूज that thing which are only one in the universe. आर्टिकल दो उन तमाम नामों के साथ में इस्तेमाल किया जाता है जो कायनात में जो यूनिक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके सब्स्टिट्यूट में कोई चीज़ नहीं। मिसाल के तौर पर द गॉड, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये सब एक यूनिक चीज़ें। ऐसी दुनिया और कायनात में जितने भी यूनिक चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ आर्टिकल द इज यूज
दैट नाउन विच इज रिपीटेड इन द सेम लाइन। ऐसी इंग्लिश की कोई लाइन है, कोई सेंटेंस है जिसमें कोई एक नाउन रिपीटेड हुआ, दोहराया गया, तो जो भी रिपीटेड नाउन होगा सेकंड टाइम में जो आएगा उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम एक सेंटेंस के जरिए समझेंगे, जैसे कि आई सॉ अ हॉर्स, द हॉर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस सेंटेंस में अगर हम और से सुने, आई सॉ अ हॉर्स, मैंने एक घोड़ा देखा, द हॉर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो घोड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो यहां पर हॉर्स रिपीटेड नाउन, दो मर्तबा एक ही नाउन सेम लाइन में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सेकंड नाउन जो रिपीटेड नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा हम आर्टिकल के इस्तेमाल में, द के इस्तेमाल में करते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल ऑफ द आर्टिकल द, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन, the combined rule of article the. Article the is used before the names of magazines, novels, newspapers, dramas, special serials, movies, the railway stations, the bus stations name, the airport, the seas, the rivers, the oceans, the mountain, etc. यानी आर्टिकल द का इस्तेमाल हम ऐसी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि दुनिया के कुछ दरिया, समंदर, तालाब, कुएं, झरने, बहर, पहाड़, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स है, ड्रामास है, जो इनके नाम है, हम इनके नामों के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे द हिमालय, पहाड़ का नाम, द सहारा एयरपोर्ट और द छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, द नाइल रिवर, द गंगा रिवर, द विल्सन लैम, द विल्सन डैम, एक्सेट्रा। यूज ऑफ अ, आर्टिकल द का इस्तेमाल सीखने के बाद अब हम आर्टिकल ए किन जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया, आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम लफ्ज़ों की बिना पर नहीं करते, बल्कि जो वर्ड्स होते हैं उनके साउंड के बेस पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको डिस्प्ले करेंगे। आर्टिकल ए का इस्तेमाल, आर्टिकल ए वो तमाम वाहिद चीज़ों से पहले इस्तेमाल करते हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट लेटर से ही किया जाता है। यानी ऐसे सारे इंग्लिश के लफ्ज़ जो वाहिद हालत में एक, और उसको हम कॉन्सोनेंट लेटर के लेटर से लिखते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट लेटर से ही किया जाता है। ऐसे सारे लफ्ज़ों से पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अ बॉय, अ प्लान, अ क्लास। इस एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो बॉय यहाँ पर सिंगुलर वर्ड है, वाहिद है, इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हुई और इसको हम कॉन्सोनेंट लेटर से ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। प्लान और क्लास भी उसकी एक एग्जाम्पल। आर्टिकल ए के इस्तेमाल में दूसरी चीज़ ये भी है कि आर्टिकल ए वो तमाम वाहिद चीज़ों के साथ में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी शुरुआत तो वॉवेल लेटर से होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट लेटर से निकलता है। जैसे कि अ यूनियन, अ यूरोपियन। इस एग्जाम्पल में यूनियन जो वर्ड है ये लेटर यू से शुरू हो रहा है, जिससे कि आपको पता है यू एक वॉवेल लेटर, लेकिन इसका साउंड यू के बजाय हम कॉन्सोनेंट से निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर अ यूनियन इस तरह से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में यूरोपियन, एक इंग्लिश का वर्ड, इसकी शुरुआत तो बजाहिर ई इस वॉवेल लेटर से हो रही है, लेकिन इसका साउंड यहाँ पर कॉन्सोनेंट से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अ यूरोपियन इस तरह से हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे। अब हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल एन
वो तमाम वाहिद चीज़ें जो कॉन्सोनेंट लेटर से तो शुरू होती है, जो वॉवेल लेटर से शुरू होते हैं और वॉवेल लेटर से ही उनका प्रोनाउंसिएशन निकलता है, ऐसे लफ्ज़ों से पहले हम आर्टिकल एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एन ईक, एन ओल्फ, एन एक। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एक ये प्रोनाउंसिएशन हम उसका ई से निकाल रहे हैं, जिसको हमने लिखे भी है ई से। उसी तरह से एन ओल्फ, ओल्फ इसका साउंड भी हम ओ से निकाल रहे हैं और ये वॉवेल लेटर है। उसी तरह से एन इंग। लेकिन याद रखिए, आर्टिकल एन का इस्तेमाल उन वाहिद लफ्जों से पहले भी किया जाता है जिनका हम लिखने में उनकी शुरुआत तो कॉन्सोनेंट लेटर से करते हैं, लेकिन उसका साउंड वॉवेल लेटर से निकलता है और उसका पहला लेटर साइलेंट होता है। जैसे कि एन ऑनेस्ट, एन ओवर। इस एग्जाम्पल में एन ऑनेस्ट, हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यानी इसमें एच साइलेंट है। और उसी तरह से एन आउट, इस हिस्से में एच साइलेंट है, इसलिए एन हम यहाँ पर वॉवेल साउंड की बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे, ना कि लफ्ज की बुनियाद पर। तो इस तरह से हमने आर्टिकल द, आर्टिकल एन और आर्टिकल ए के अलग अलग इस्तेमाल सीखे हैं। हमने आर्टिकल के मीनिंग, आर्टिकल के टाइप और आर्टिकल के अलग अलग इस्तेमाल को भी सीखे हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी यहाँ पर नोटबुक की शक्ल में देने वाला हूँ। उसके पेज को आप स्क्रीन के ऊपर अपनी वीडियो को पॉज करके उसकी एक कॉपी ले लें और जिन जिन जगह पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसकी भी एक शॉर्ट कॉपी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इस तरह से हमने आर्टिकल को डिटेल में सीखे। अगर आपको इसके मुताबिक जो भी माइनर से माइनर डिफिकल्टी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हुए सवाल पूछ सकते हैं।